हेयर ट्रांसप्लांट की हर जर्नी अपने साथ एक नया एक्सपीरियंस लेकर आती है और हर पेशेंट की प्रोग्रेस अपनी एक अलग कहानी बताती है। सबसे पहले देखते हैं हमारे पहले पेशेंट को और समझते हैं उनकी जर्नी किस तरह आगे बढ़ी। Hello viewers, welcome to the official YouTube channel of QHT Clinic. Today we are sharing one of our patient's hair transplant journey who faced the challenges of diffuse grade 3 baldness. His hairline has completely receded and changed into an M shape which significantly affected his confidence and self-esteem. Additionally, the patient's frontal and mid-scalp areas had been damaged. However, the rest of the scalp remained in healthy condition. Thankfully, he had a strong and healthy donor area with thick hair caliber which allowed us to use his existing hair to further enhance the final outcome. After carefully examining his facial structure and scalp, our experts designed a curved hairline 7.1 cm from the glabella point, following the 4 fingers method, which makes up to 1/3 of the face. The hairline was shaped to look rounded from the top, highlighting the patient's natural features. In addition to the hairline, the entire affected area was also outlined for a comprehensive treatment plan. During the procedure, our experts implanted single and thin hair follicles in the hairline zone to create a natural and soft look. The follicles had been implanted following the zigzag pattern, which created a straight hairline with a slight curvature. In the frontal area and mid-scalp areas, double and triple hair follicles were implanted to add maximum density, as it initially appeared sparse. In this process, a total of 3,300 grafts were implanted, all extracted from the patient's safe donor zone. 1 month post-transplant, when the patient visited the clinic for his first follow-up PRP session, our expert noticed around 50% shedding visible on the scalp. The recovery had been smoother and the hairline had started to take shape. Although the density was low, as expected at this stage, hair was present. At the same time, the donor area healed completely and did not show any redness on the side. 3 months after the surgery, the shedding phase was over. This phase, which was a natural part of the hair transplant cycle, had given the patient excellent results, significantly improving the appearance of the hairline and the overall confidence. The progress had become clearly visible on the scalp and new hair had started to grow, further enhancing the overall look. 4 months after the transplant, the transplanted hairs had merged seamlessly with the existing hair, perfectly framed the hairline and beautifully enhancing the patient's facial features. Supported by PRP, platelet-rich plasma treatment, the progress was promising, though more time was needed for significant growth. 6 months after the transplant, the hair appeared fuller and was almost undetectable as being transplanted. Compared to the previous month's progress, the results were truly impressive. The hairline had become perfectly defined and beautifully framing his facial features, enhancing his overall appearance. The frontal area and mid-scalp have also gained a fuller look with the seamless integration of transplanted and native hairs, as no gaps are visible in these regions. The thinning in the crown area, which had been there before, had also healed with the help of PRP, and good growth had become visible. The combing style further enhanced the overall appearance, giving the hair a natural and thick look. After 10 months, the patient showed significant improvements in hair growth, exhibiting well-balanced results. The frontal area and mid-scalp displayed fuller growth, indicating the success of the transplant in those regions. Overall, the scalp was now completely filled with hairs. By this month, the patient was able to choose any haircut and style his hair according to his preference. The procedure not only brought back his facial frame, but also boosted his self-confidence and overall vitality. अब मिलते हैं सचिन कुमार से और जानते हैं उनका हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपीरियंस कैसा रहा। हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में मैंने काफ़ी सुना था, फिर मैंने कई जगह ट्राई भी किया इसका कि कैसे होगा, क्या होगा। और इसमें हेयर ट्रांसप्लांट का जो मैंने सबसे अच्छा रिजल्ट देखा, तो मेरे एक साथ वाले थे, तो उन्होंने बताया QHT सबसे बेस्ट है। और ऐसा हुआ भी कि मुझे 4 महीने में बहुत अच्छी ग्रोथ मेरे बालों की हुई। और नहीं तो मुझे बहुत निराशा थी कि कुछ लोगों का हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी अच्छे बाल नहीं आ पा रहे, और मुझे नेचुरल बाल बिल्कुल कोई पहचान नहीं सकता। इस तरह की मुझे सुविधा मिली। मेरा नाम सचिन है और मेरी ये 3rd PRP है। मेरा हेयर ट्रांसप्लांट 4 महीने हो गए, और जो मेरा हेयर लॉस था ये लगभग 3-4 साल से ज़्यादा हुआ। उससे पहले भी मुझे जेनेटिक भी प्रॉब्लम थी, लेकिन वो एक रूटीन जो होता है सिस्टम, उसकी वजह से, और क्या कहें, बस एक एज का भी वो था धीरे धीरे, तो उससे ज़्यादा हेयर लॉस हुआ।
हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में मैंने काफ़ी सुना था, फिर मैंने कई जगह ट्राई भी किया इसका कि कैसे होगा क्या होगा। और इसमें हेयर ट्रांसप्लांट का जो मैंने सबसे अच्छा रिजल्ट देखा तो मेरे एक साथ वाले थे, तो उन्होंने बताया QST सबसे बेस्ट है। और ऐसा हुआ भी कि मुझे 4 महीने में बहुत अच्छी ग्रोथ मेरे बालों की हुई। और नहीं तो मुझे बहुत निराशा थी कि कुछ लोगों का हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी अच्छे बाल नहीं आ पा रहे, और मुझे नेचुरल बाल बिल्कुल कोई पहचान नहीं सकता। इस तरह की मुझे सुविधा मिली। मैं जिसमें मई महीने में हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आया था, तो थोड़ी नर्वस भी था। और एक दिन पहले मैंने थोड़ा समझा, तो मुझे अगले दिन का टाइम दिया हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। जिस दिन मैं आया तो OT में जाते थे, मैं थोड़ा ये भी था कि पता नहीं कितना पेन होगा, कितना टाइम लगेगा। लेकिन पूरी टीम, QST की पूरी टीम जो थी OT में, वो इतना सपोर्ट किया उन्होंने मुझे। लगभग 8 से 10 घंटे लगे जो मेरा ट्रीटमेंट चला पूरा। उसमें मुझे खाली ये मानो कि 1-2 घंटे की जानकारी है, उसके बाद मैं ज़्यादा टाइम सोता ही रहा। मेरे सर्जरी के दौरान मुझे जो बताया था, तो वो 5000 ग्राफ्ट लगने थे, और वो सब मेरे QST तकनीकी के तरीके से लगे हैं, जिसमें मुझे कोई पेन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। जैसे ही मैं ट्रांसप्लांट कराने के बाद घर पे गया, तो 10 दिन तक मुझे पता था कि 10 दिन तक कोई वॉशिंग नहीं करनी है, कुछ नहीं करनी है, और धूल मिट्टी से ज़्यादातर बचा के रखना है। तो उसमें बीच में जो QST की टीम थी, वो पर डे का मेरा बैकअप लेती थी कि आपने क्या किया इसमें और कैसे आपको करना है, स्वेलिंग कितनी है, उसकी फ़ोटोग्राफी मांगते थे। तो बहुत अच्छा कि वो रहा, और बीच बीच में मुझे कंसल्ट करते रहे कि हाँ आपको क्या करना है। और इससे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं यही कहूँगा जो भी भाई, जो भी दोस्त हमारे हेयर लॉस के परेशान हैं, वो QST क्लिनिक में आए और अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराएं, संतुष्ट रहेंगे। और मेरा गुड लक उनके साथ में। इसके बाद देखते हैं मोहम्मद शोएब को, जहां उनकी जर्नी का अगला फेज देखने को मिलता है। हमारे पेशेंट को हेयर ट्रांसप्लांट कराए हुए अब 2 मंथ्स पूरे हो चुके हैं। टोटल 4500 ग्राफ्ट्स लगाए गए थे। ट्रांसप्लांट से पहले उनके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और यहाँ तक कि पेरेंट्स ने भी ये कहा था कि हेयर ट्रांसप्लांट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पेशेंट ने QST क्लिनिक पर ट्रस्ट दिखाया और प्रोसीजर करवाया। अब सिर्फ 2 मंथ्स के अंदर ही वो अपनी हेयर ग्रोथ की प्रोग्रेस से काफी खुश हैं। शुरुआती शेडिंग के बाद अब धीरे धीरे नए बाल उगने लगे हैं, जो कि एक नॉर्मल और एक्सपेक्टेड फेज है। अब सवाल उठता है, क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हम अपने बाल ट्रिम कर सकते हैं? लोगों के मन में डर ये होता है कि ट्रांसप्लांट कराने के बाद हम बाल नहीं कटा सकते। नहीं, बाल कटा सकते हो बिल्कुल, जैसे नॉर्मल बाल होते हैं ऐसे ही बाल होते हैं। ये बिल्कुल साफ सफाई का ध्यान रखो, जहाँ पे सैनिटाइजर वगैरह हो, और ये कॉम्ब वगैरह और ये सीजर वगैरह जो फ्रेश होती हैं, अच्छे सैलून में जाए जहाँ कोई आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरा नाम शुएब है, मैं यूपी के नजीबाद शहर से आया हूँ। आज मेरी सेकंड PRP है। मेरे ट्रांसप्लांट को 2 मंथ हो चुके हैं। मैं QST क्लिनिक आया हूँ आज। मैं आया था यहाँ पर फर्स्ट टाइम, डॉक्टर से कंसल्ट करा मैंने, उन्होंने मुझे समझाया। फर्स्ट टाइम आया, उन्होंने मुझसे मिला, और सेकंड दिन मुझे उन्होंने फिर बुलाया। फिर थर्ड दिन मेरी सर्जरी हुई, और सर्जरी होने के बाद ना तो मुझे कोई पेन हुआ ऐसा, ना कोई प्रॉब्लम हुई। बहुत अच्छे से हुआ। जैसे मैं घबरा रहा था ऐसा कुछ नहीं हुआ, डर लग रहा था मुझे, पर बहुत अच्छे से रिलैक्स सर्जरी हो गई मेरी। मेरे 4500 ग्राफ लगे थे, और मेरे डोनर एरिया जो था वो 1 महीने में नॉर्मल हो चुका था, और अब मैं फिलहाल ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और शेडिंग फेस मेरा फिलहाल 20% है, अभी मेरा ज़्यादा नहीं है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था मेरे बाल दोबारा से आ जाएंगे। लोग ताजुब कर रहे हैं, मेरे दोस्त भी, वो मना करते थे नहीं आ पाएंगे। जब उन्होंने देखा वो भी आश्चर्य में रह गए। जो भी कोई पूछता है मुझसे कि आपके बाल कैसा है, मैंने बोला मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है QHT से। तो कुछ लोग मुझसे बोल रहे हैं कि जो मेरे फ्रेंड लोग से जिनके बाल चले गए हैं वो मुझसे कह रहे हैं कि हमें भी कराना है। मैंने उनको सलाह दी है कि QHT क्लिनिक आएं और अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराएं। डॉक्टर ने मुझे सेफ्टी प्रोटोकॉल बताया था, जिससे मेरा ब्लड टेस्ट हुआ, सैंपल चेक हुआ, मेरा ब्लड प्रेशर वगैरह सब नॉर्मल चेक करा उन्होंने। उसके बाद मुझे सर्जरी करी। और आजकल जैसे चल रहा है मामला ट्रांसप्लांट में, ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रही हैं, उस हिसाब से बहुत बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है मेरे यहाँ पर, बहुत सेफ्टी से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ के डॉक्टर बहुत ही अच्छे हैं, जो अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं, अच्छे से बिलीवर है उनका, बहुत ही बढ़िया। और सर्जरी होने के बाद भी मेरे 15 दिन तक मुझे रोज फोन कर करके पूछते थे कैसा रहा आपका, कैसा है आप रोज मेरे से ये पूछते थे। और हम हर टाइम मेडिसिन की याद दिलाते थे, ऐसे नहीं है वैसे, बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब यहाँ के वो करते हैं। मेरी फैमिली में वो लोग बोलते थे नहीं हो पाएगा ऐसा, दोबारा से बाल नहीं आ पाएंगे। फिर मैंने QHT क्लिनिक में आया, मैंने विजिट करा, यहाँ पे डॉक्टर से बात की, उन्होंने मुझे सेटिस्फाई किया। मुझे भी लगा कि शायद आ पाए बाल। तो मेरे घर वालों को बिलीव ही नहीं हो पा रहा है कि दोबारा बाल मेरे फिर आ रहे हैं। तो अब मेरे फैमिली वाले बहुत खुश हैं, मेरे दोस्त भी, सब भी, और मैं भी बहुत खुश हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है। अब पहले मैं कैप लगाता था, अब मैंने बिल्कुल कैप लगाना छोड़ दिया है। मुझे वो यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा दोबारा बाल आ गए हैं। अब मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा हो गया है। पहले मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो था। मुझे अपनी फिलहाल कंडीशन को देख करके लग रहा है मेरा रिजल्ट जो आएगा अमेजिंग आएगा। जैसे मेरी ग्रोथ हो रही है ना, मुझे लग रहा है कि अमेजिंग रिजल्ट आएगा मेरा, बहुत अच्छा। मेरी ग्रोथ अच्छी है, मुझे अच्छा लग रहा है। लोगों के मन में डर ये होता है कि ट्रांसप्लांट कराने के बाद हम बाल नहीं कटा सकते। नहीं, बाल कटा सकते हो बिल्कुल, पर थोड़ी सावधानियां रखनी पड़ेगी आपको कि थोड़ा साफ सफाई और अपना हेड वगैरह क्लीनिंग अच्छे से, जो गंदा ना हो, डैंड्रफ ना हो, बस यही ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे नॉर्मल बाल होते हैं ऐसे ही बाल होते हैं ये, बिल्कुल साफ सफाई का ध्यान रखो और अच्छे से अपना क्लीन रखो। मैं ये कहना चाहूंगा आप जहाँ भी सैलून में जाए, अपने हाइजीनिक सैलून में जाए, जहाँ पे सैनिटाइजर वगैरह हो और ये कॉम्ब वगैरह और ये सीजर वगैरह जो फ्रेश होती हैं, अच्छे सैलून में जाए जहाँ कोई आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। मैं ये कहना चाहूंगा बस। मैं आज मैं सेकंड PRP के लिए आया हूँ। मुझे लगता था डर की PRP में डर लगता था कि सर में इंजेक्शन लगता है, ब्लड निकालते हैं, पर मैंने यहाँ आके देखा, मेरा ब्लड निकाला भी, सैंपल ब्लड निकाला, उसमें से उन्होंने मशीन में डाल करके प्लाज्मा निकाला। प्लाज्मा निकालने के बाद मेरे सर में इंजेक्ट कराया उन्होंने। न तो मुझे कोई पेन हुआ ना कुछ दर्द हुआ, और उसमें मेरे को वाइब्रेटर से सर में अच्छे से इंजेक्ट किया। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं फाइन हूँ। PRP में ज्यादा टाइम नहीं लगता, इसमें से 10 या 15 मिनट लगते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये ट्रांसप्लांट वाले कराएं, ये नॉर्मल इंसान भी करा सकता है। इससे ये फायदा होता है, इससे हेयर के रूट्स भी अच्छे होते हैं, ग्रोथ भी अच्छी होती है बालों की, और बहुत अच्छा अमेजिंग रिजल्ट आता है इससे। नॉर्मल इंसान भी करा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत अच्छे रिजल्ट आता है। मेरे को 2 मंथ हो चुके हैं ट्रांसप्लांट कराए हुए। मुझे QHT क्लिनिक का रिजल्ट अच्छा लगा है। मैं तो अपने फ्रेंड्स लोगों को, जो भी मेरे दोस्त लोगों, सबको ये सजेस्ट करूंगा कि QHT क्लिनिक आए, यहाँ पर विजिट करें, जो भी अपनी हेयर से प्रॉब्लम हो अपना यहाँ आकर के डॉक्टर से मिले। अब मैं जा रहा हूँ सेकंड PRP कराने, अगले महीने आपसे फिर मिल लूंगा, आपको अपना रिजल्ट दिखाऊंगा। उसके लिए बाय बाय। अब बढ़ते हैं पीयूष कुमार की तरफ और देखते हैं उनकी प्रोग्रेस किस तरह डेवलप हुई। लगभग 4 साल से मैं हेयर फॉल से परेशान हूँ, और सोते हुए या फिर मतलब बालों में हाथ डालते हुए और पिलो पे और शैम्पू करते हुए ऐसे काफ़ी बाल झड़ रहे थे। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था सर्जरी के बारे में, कराने के बारे में, तो फाइनली सर्जरी मैं करा चुका हूँ, हो चुकी है फाइनली मेरी, और अब मुझे रिजल्ट का वेट है। मेरा नाम पीयूष है। लगभग 4 से 5 साल से मैं अपने बॉल्डनेस से परेशान हूँ, तो आज फाइनली मैं QHT क्लिनिक आ चुका हूँ अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने। लगभग 4 साल से मैं हेयर फॉल से परेशान हूँ, और सोते हुए या फिर मतलब बालों में हाथ डालते हुए और
पिलो पे और शैम्पू करते हुए ऐसे काफ़ी बाल झड़ रहे थे। तो मैंने अपने पास में ही क्लिनिक से मतलब दवा ली थी बरेली से। तो जब तक मैंने दवा खाई थोड़ा बहुत आराम मिला, उसके बाद फिर से बाल ऐसे ही झड़ने लगे। और अभी कंडीशन ये है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल हो चुका है। कभी बाहर हिल एरिया पे घूमने जाना होता है तो मतलब फ़ोटो वगैरह खिंचाने का मन नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी बाल मतलब डीमोटिवेट और काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। तो ज़्यादा पार्टी वगैरह में दोस्तों वगैरह के साथ भी काफ़ी मतलब ऐसा ही लगता है फ़ोटो ना खिंचाएं, और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बॉल्डनेस आ गया है तो इस चक्कर में अच्छा नहीं फील होता है। और काफ़ी कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी डाउन हो गया है जब से हेयर फॉल होना शुरू हुआ है तब से। मैं लगभग 6 मंथ से प्लान कर रहा हूँ हेयर ट्रांसप्लांट का। और मैंने पहले एक यूट्यूबर था, उनकी मतलब मैं देख रहा था ही चैनल, देख रहा था कि हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह रिजल्ट कैसे रहते हैं। फिर उसके बाद मैंने QST क्लिनिक का एक बार मतलब रील आई मेरे सामने, देखा मैंने, फिर खोल के देखी और भी रिजल्ट चेक करे। उसके बाद फिर मैं यहाँ विज़िट करने आया, तब मुझे मतलब फिर यहाँ भी मैंने रिज़ल्ट देखे लोगों के, बातचीत हुई मेरे लोगों से। उसके बाद फाइनली आज मैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आया हूँ क्लिनिक पर। मेरा जब QST क्लिनिक की टीम से मेरी बात हुई थी तब उन्होंने मेरे फ़ोटो मांगे थे फ्रंट के, और उन्होंने लोगों 250-3,000 मुझे ग्राफ्स साइज किए थे, बताए थे मुझे टीम ने। मैं क्लिनिक लगभग 12:30 बजे आ गया था। उसके बाद मेरी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो चुका है और लोकल एनेस्थीसिया टेस्ट भी हो गया है, इससे इचिंग वगैरह या कोई एलर्जी तो नहीं है। सर्जरी को लेके बस यही है थोड़ा कि जब सर्जरी होगी तो पेन वगैरह होगा और कितने टाइम तक चलेगी सर्जरी, और बाकी क्लिनिक की साफ़ सफाई देख के तो अच्छा फील हो रहा है, काफ़ी ठीक लग रहा है। ये थी मेरी सर्जरी की जर्नी बिफोर, और इसके आगे जो भी सर्जरी के जो भी प्रोसेस रहेगा वो मैं आपके साथ आगे अपडेट देता रहूँगा, शेयर करता रहूँगा आप सभी के साथ। सर्जरी मेरी हो चुकी है, आप देख सकते हैं मेरी कंडीशन। और मेरी सर्जरी में लगभग 10.5 घंटे लगे थे, और 10.5 घंटे के बीच में कोई भी दिक्कत नहीं हुई, कोई ज़्यादा पेन भी नहीं, हल्का बहुत चुभन सी हुई थी। कभी कुछ लगा तो डॉक्टर्स वगैरह ने और स्टाफ ने काफ़ी सपोर्ट करा बहुत अच्छी तरह से, और इतने टाइम में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। क्लिनिक में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और जो है होने के बाद कंडीशन आप मेरी देख ही सकते हैं। सर्जरी स्टार्ट होने से पहले थोड़ा सा मन में डर था, थोड़ा सा पेन को लेके और भी, लेकिन फिर जब सर्जरी स्टार्ट हुई 10-15 मिनट के बाद फिर ऐसा कुछ भी नहीं लगा। और उसके सारे जितनी भी देर सर्जरी उस टाइम में कोई दिक्कत नहीं, और सर्जरी होने के बाद भी कोई पेन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत अच्छा रहा। अब मेरी सर्जरी हो चुकी है तो सर्जरी को लेके मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, और मुझे अब रिज़ल्ट का वेट है। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था सर्जरी के बारे में, कराने के बारे में, तो फाइनली सर्जरी मैं करा चुका हूँ, हो चुकी है फाइनली मेरी, और अब मुझे रिज़ल्ट का वेट है। रिज़ल्ट की मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा रहेगा आगे भी, क्योंकि जिस तरह से हुआ है, मेरी सर्जरी हुई है, बताया था डॉक्टर्स ने मुझे, तो रिज़ल्ट उम्मीद है काफ़ी अच्छा रहेगा। और मैं आगे आपसे मिलता रहूँगा PRP सेशंस वगैरह में। और आखिर में मिलते हैं अंकित कुमार से और समझते हैं उनका ओवरऑल हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपीरियंस और जर्नी। शैम्पू करते थे, बालों को धोते थे तो देखते थे हाथ पर बहुत हेयर आ रहे हैं, या कॉम करते समय हेयर आ रहे हैं, तो धीरे धीरे हेयर लाइन पीछे की जा रही थी। और उसको जब तक लगाते थे, दवाइयाँ चलती रहती थी तो ठीक रहता था। उसके बाद फिर से बाल गिरना स्टार्ट हो जाते थे। फिर डॉक्टर से मिले, डॉक्टर ने समझाया सब चीज़ें कैसे कैसे सब प्रोसेस रहेगा। स्टाफ यहाँ का बहुत कोऑपरेटिव है और हाइजीन का बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं। मेरा नाम अंकित कुमार है। लास्ट मंथ में ही मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ QST से 25 तारीख को, और आज मेरी फर्स्ट PRP है। फर्स्ट PRP के लिए मैं यहाँ आया हूँ। 1 महीने में जैसे ही हेयर रूट डेवलप हो रही हैं तो अभी लग रहा है ठीक है, हेयर लाइन सही बनी है, और रिजल्ट देखते हैं आगे
धीरे धीरे जो PRP चलेंगी और फिर मिनॉक्सिडिल वगैरह चलेंगे तो उससे क्या रिजल्ट रहता है और आगे बेहतर पता लगेगा। तो मेरा हेयर फॉल लगभग 2018 से हेयर लाइन थोड़ी पीछे जानी शुरू हो गई थी, तो मुझे लगा शायद ये हो जाएगा, दवाइयों से ठीक हो जाएगा, लेकिन ये जेनेटिक था तो नहीं हो पाया, काफ़ी दवाइयाँ ली। तो अब आगे फिर सोचा कि ट्रांसप्लांट ही एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि दवाइयों से इतना कुछ नहीं हो पाता है। तो क्या है, जैसे शैम्पू करते थे, बालों को धोते थे, तो देखते थे हाथ पर बहुत हेयर आ रहे हैं, या कॉम्ब करते समय हेयर आ रहे हैं, तो पता लगता था बहुत सारे इस तरह से तो बहुत हेयर निकल रहे हैं डेली के डेली। क्योंकि मैं शैम्पू भी डेली नहीं करता था, तीसरे दिन शैम्पू करता था, लेकिन जब भी देखता था तो बिस्तर पर बाल मिलते थे, धीरे धीरे काफ़ी बाल झड़ने लगे। तो फिर इस समस्या के बारे में कुछ जैसे दोस्तों से डिस्कस करते थे, तो जहाँ भी पता लगता था, 1-2 डॉक्टर से भी मिले, कुछ तेल भी यूज़ किए और कुछ दवाइयाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा उससे बेनिफिट नहीं हो पाया। तो धीरे धीरे हेयर लाइन पीछे ही जा रही थी, और उसको जब तक लगाते थे, दवाइयाँ चलती रहती थी तो ठीक रहता था। उसके बाद फिर से बाल गिरना स्टार्ट हो जाते थे। इन सब से दवाइयों से नहीं हो पाएगा, क्योंकि हेयर लाइन दवाइयों से नहीं बन पाती है, उसके लिए हेयर ट्रांसप्लांट ही एक अच्छा डिसीजन है। तो मैंने अपने घर वालों से इस चीज़ के लिए डिस्कस किया, क्योंकि तो फिर मन में काफ़ी इस संबंध में भ्रांतियाँ रहती हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसा रिजल्ट रहेगा, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम ना हो जाए आगे जाकर। तो उन सब को देखते हुए फिर मैंने कई ट्रांसप्लांट के जो क्लिनिक हैं वहाँ सजेस्ट जानकारियाँ ली, लोगों से बात की। तो उसके बाद कई जगह जानकारी लेने के बाद मैंने QHT को चुना, क्योंकि QHT का मैंने रिजल्ट भी देखे थे और कुछ लोगों से मिला भी था जिन्होंने करा चुके थे। तो मुझे QHT बेस्ट लगा, इसलिए मैं QHT पर आया। तो QHT आने के बाद तो मन में थोड़ा नर्वसनेस तो थी। फिर डॉक्टर से मिले, डॉक्टर ने समझाया सब चीज़ें, कैसे कैसे सब प्रोसेस रहेगा। स्टाफ यहाँ का बहुत कोऑपरेटिव है और हाइजीन का बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं। तो डे टू डे हेयर ट्रांसप्लांट होने से पहले भी गाइड करना कि तुम्हारा इस दिन हेयर ट्रांसप्लांट रहेगा, इस टाइम पहुँचना है। उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट होने के बाद भी डेली कॉल करते थे, फ़ोटो मांगते थे, फ़ोटो की क्या कंडीशन है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अच्छा कोऑपरेटिव स्टाफ है। जिस दिन हेयर ट्रांसप्लांट था तो उस दिन सुबह हेयर लाइन बनाने के बाद तो अगले दिन बुला लिया ट्रांसप्लांट के लिए। तो सुबह बुलाया, तो जब मैं OT में गया तो डॉक्टर से मिला, तो वहाँ का बहुत अच्छा OT है और हाइजीन का काफ़ी ध्यान है। तो जब मुझे एनेस्थीसिया दिया गया तो तभी थोड़ा पेन हुआ। उसके बाद क्या हो रहा है मुझे कुछ पता नहीं लगा। मुझे सब पता था, सबकी बातें सुन रहा था, मैं भी बातें कर रहा था डॉक्टर से, लेकिन पेन का कुछ पता नहीं लगा, पेन हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। बीच बीच में बातें करते रहे डॉक्टर। उसके बीच में रिफ्रेशमेंट भी दिया, खाने के लिए कुछ दिया, हल्का खाना, हल्का ही दिया जाता है वहाँ पर, ज़्यादा हैवी खाना नहीं दिया जाता बीच में। तो ओवरऑल पूरा अच्छा रहा वहाँ पर। तो मेरे 3500 ग्राफ्ट लगे हैं और ये QHT टेक्निक से ही ट्रांसप्लांट हुआ है। और उसमें क्या होता है, बालों को निकाल कर ज़्यादा दिन, जो ग्राफ्ट होते हैं उन्हें निकाल कर ज़्यादा टाइम तक रखा नहीं जाता, उसको निकाल कर आते हो तभी लगा दिया जाता है। तो उसका सक्सेस पॉइंट रेट जो होता है बहुत अच्छा रहता है, इसलिए मैंने QHT टेक्निक को ही चुना था। सर्जरी के बाद उसी दिन मैं अपने घर पहुंच गया था। घर पे ही अपनी बैंडेज रिमूव कर ली थी। तो सब चीज़ें फ़ोन पर समझाते रहे थे। दवाइयाँ के बारे में यहाँ भी बता दिया गया था कब कब कौन सी दवाई लेनी है। और 5वें दिन मैंने हेड वॉश कर दिया था अपना। तो उसमें धीरे धीरे वो एक तरीका है हेड वॉश करने का जो बताते हैं। तो ये एक बहुत ही सेफ प्रोसेस है। जो भी हेयर फॉल की समस्या है या इसको फेस कर रहा है तो बिना डरे अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा सकता है। और मैं तो कहूँगा QHT भी एक अच्छा क्लिनिक है और यहाँ से कराएं, बहुत अच्छा आप एक्सपीरियंस लेकर के जाओगे। तो अभी देख सकते हैं आप मेरे जो स्कैल्प का शेडिंग फेस चल रहा है और इसके बाद हर मंथ PRP होगी। तो मैं एक्साइटेड हूँ कैसा रिज़ल्ट रहता है।
ये मेरी फर्स्ट PRP है। नेक्स्ट PRP पे फिर मिलेंगे आपसे, इस अपने क्या इम्प्रूवमेंट रहेगी वो आपको दिखाएंगे। थैंक यू PHT। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।